So when you start fashion school, there are going to be like maybe 7 to 10 subjects that they give you. But out of those subjects, there will be one, two, and three that are the most difficult क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा hard labor आपको करना पड़ता है. It's all physical work, it's physical skill with your hands, with your eyes. तो ये तीन चीज़ें होते हैं. नंबर वन सोइंग होता है, स्टिचिंग, और फिर होता है सरफेस ऑर्नामेंटेशन जिसमें आता है एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, जो भी आप आपके फैब्रिक के सरफेस के ऊपर काम करते हैं टू ब्यूटीफाई, टू मेक इट लुक, यानी कुछ भी डिज़ाइन उस पर डालना है. उसमें पेंटिंग भी आती है, स्टेंसिल वर्क भी आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है. एंड देन द लास्ट इज़ इलस्ट्रेशन. सो दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर द most difficult to do, and they teach you, यानी फैशन स्कूल में when you make an inquiry, so they tell you कि कोई टेंशन नहीं, हम सब सिखा देंगे, and that is true. But the time that you have from when you start from zero, so zero से start करके and then you have to do projects, that time is very less. तो इसमें क्या होता है, when the students that were with me that started from zero, they had a lot of trouble in in completing the projects and making it look presentable. क्योंकि stitching जो काम होता है ना, it's not hard, but you need some time to get used to it. Machine चलाना, कटिंग करना, and just wrapping your head around, because pattern making जो कटिंग में कह रही हूँ, in itself it is a skill. यानी जो टेलर है, टेलर को सिर्फ बेसिक गारमेंट्स बनाने क्यों आते हैं, उसको पैटर्न मेकिंग क्यों नहीं आता? बिकॉज दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट. एंड व्हेन यू हैव these two skills, a designer basically has to put these skills together. So that is next level. If anyone asks you, you can say what is the difference between tailor and designer. This is the difference. Okay, this adds a layer of, like, when you can do pattern making, you can make anything in the world because you can figure out the blueprint and you can create the blueprint. This is something that a seamstress, a tailor is not able to do by themselves. Okay, so ये सारे इसमें subjects होते हैं. So in order to prepare for fashion school, I recommend this to everyone. There are so many people in my life जो मेरे juniors थे या मेरे cousins है family में, and these girls come up to me and they're like क्या करना चाहिए fashion school में जाने के लिए. So I thought that I will make a video because there are some very big points that will make a world of difference when you start going to the college. So the most important out of all of these is stitching. You need to learn stitching beforehand. Like if you have decided कि मुझे fashion में admission लेना है and I want to learn fashion, start early, because you will get to know how to handle the machine and you will also have some basic sense of where to cut, where to cut the fabric using the scissors. This is like I did this बिकॉज मुझे बहुत जल्दी थी एक्चुअली सिलाई सीखने में. मेरे घर पे भी आई हैड सम सपोर्ट बिकॉज माई ग्रैंड मदर्स ऑन बोथ साइड्स दे न्यू स्टिचिंग. माई मॉम न्यू some basic stitching and they really encouraged when they saw that I had the interest, they encouraged me to do that. They took me to the tailors to make the designs जो पहले मुझे नहीं समझ में आते थे ना कैसे स्टिचिंग करना है. And then as soon as I was able, like when I turned 15, I was like मुझे सीखना है, and they enrolled me इन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र का, क्या नाम था उसका, MIFD नाम था शायद, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन. सो वहाँ पर मैंने 3 मंथ्स का कोर्स किया था. 6 मंथ्स का भी होता है लेकिन 3 मंथ्स का स्टिचिंग का मैंने कोर्स किया था, स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग. तो उसमें तीन चीज़ें दे कवर्ड. स्टिचिंग ऑफ बेसिक लाइक ट्रेडिशनल गारमेंट्स जो हमारे होते हैं, उसमें आता है देखो सलवार, चूड़ीदार, अनारकली, सलवार सूट, पटियाला सूट, पटियाला शलवार, एंड लॉन्ग फ्रॉक बोलकर लोकली कहते थे. सो दैट्स लाइक अ गाउन. ओके, इट कैन बी लाइक अ 2 पीस गाउन और अ सिंगल कट गाउन. एंड अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो टीचर थी, शी वॉज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड. शी हर सेल्फ had actually also been stitching since I don't know maybe 12 or 15 years of age. तो कोई भी काम आपको अच्छे से करना है ना, you need the experience. And when you go to fashion school and they say that no problem, हम सिखा देंगे, आपको आ जाएगा, only half of that is true. वो सिखा देंगे लेकिन आपको टाइम पर नहीं आएगा, because the projects that start to pile up,
यू लर्न द बेसिक्स, बेसिक गारमेंट स्टिचिंग यानी नेक बनाना, स्लीव बनाना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये 1-2 महीने में फिनिश हो जाती है, उसका काम ख़त्म हो जाता है। एंड देन डायरेक्टली आफ्टर दैट यू हैव टू डू द बिग प्रोजेक्ट्स, ओके। एंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स फैशन स्कूल में होते हैं, विच आर इट्स गुड फॉर लर्निंग बिकॉज यू नीड टू हैव द प्रेशर, बट आपका हाथ साफ नहीं होता है। एंड देन यू विल बी लाइक टेयरिंग योर सेल्फ अपार्ट, बाल खींच रहे होगे बाहर, निकाल रहे होगे खुद के बाल कि ये हो क्यों नहीं रहा। So learn stitching beforehand and practice beforehand, even if it is as little as 10 days beforehand, because machine chalana is not like when you start it's not easy, it's actually very dangerous, बहुत सारे accidents हो जाते हैं, ठीक है। You need to, like, your body needs to get used to the movement and your eye also needs to coordinate with the needle कि अच्छा ये ऐसे, मैं ऐसे फोर्स डाल रही हूँ पेडल पर तो यहाँ से नीडल चल रही है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू ओरिएंट योर सेल्फ। लाइक व्हेन यू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, एकदम से तो नहीं आता ना, यू नीड टू ओरिएंट योर सेल्फ कि कहाँ से, यानी कितना इसका एरिया है, कितना क्या है। ये सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है और ये 2 महीने में नहीं होता। एंड यू डोंट हैव, यू थिंक दैट 1 साल में सीख जाएंगे, यू डोंट हैव 1 साल, यू हैव 2 months एट मोस्ट टू मेक योर स्किल फाइन, ओके। एंड देन फिर उसका एग्ज़ाम भी होगा, फेल हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में दे विल गिव यू लाइक 1 hour, सो यू हैव 30 minutes पैटर्न मेकिंग के लिए एंड 30 minutes स्टिचिंग के लिए। 30 minutes में इतनी फास्ट कैसे करोगे? सो कीप दिस इन माइंड। बाकी illustration you don't need to worry about it because illustration में actually you have the whole year and they teach you very intensively, step by step they teach you, so that is fine। बाकी जो surface work होता है, जो surface ornamentation होता है, for that you can learn, for this I have a different suggestion, वो सिखा देंगे because they teach you from the basic stitching and it's not that hard। यानी जो embroidery होती है ना, unless you're taking on like some very big very major design जिसको बहुत time लग रहा है and बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत मशक्क़त जा रही है, first of all don't do that। Be a little smart, थोड़ा सा, यानी whenever you choose like the motifs even for the projects, choose something that takes a lot of space but in the end you don't have to fill that entire space। design कुछ ऐसा होना चाहिए खुला खुला। I will maybe I'll make another video on that। I have some examples in my file। I actually got a lot of compliments from my teacher for that। They're like, you're doing something smart कि design complete हो रहा है but I don't need to fill so much space, so it's not taking up so much of my time। so बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इसमें आती है कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, बिकॉज ऑल these subjects are taking place at the same time। आपके थियोरी सब्जेक्ट्स चलेंगे एंड एट फर्स्ट वी हैड द स्टिचिंग का एंड सर्फिस का साथ में चल रहा था, यानी 1 hour वी हैव फॉर द सर्फिस ऑर्नामेंटेशन का लेक्चर एंड देन सम थियोरी लेक्चर्स एंड देन वी हैड 2 hours स्टिचिंग का लेक्चर। सो प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स जो है दोनों के साथ में चल रहे हैं। सो आई हैव टू डू दैट, आई ऑल्सो हैव टू डू दिस। एंड यू नो व्हेन पीपल से के फैशन ही तो है, कुछ पढ़ाई तो नहीं की, कौन सी क्या मेहनत कर ली, बहुत मेहनत होती है। like my sister who studied medicine, she studied physiotherapy, इतने इतनी उनकी पढ़ाई थी and yet she was getting more hours of sleep, she was getting more holidays, she was able to, college की trip जा रही है and she was able to relax in the middle of all of that while she's studying to be a doctor। meanwhile मैं fashion पढ़ रही हूँ, I have not slept in 4 days। मैं रात रात भर बैठ के असाइनमेंट्स कर रही हूँ, कॉलेज को जा रही हूँ, कॉलेज का भी काम है, कॉलेज में यू डोंट हैव अ मिनट ऑफ पीस एंड देन आई कम होम एंड माई एंटायर टाइम इज गोइंग इन कंप्लीटिंग द ऑल ऑफ दिस असाइनमेंट्स। एंड छुट्टियाँ हमें मिली नहीं, गर्मी की छुट्टियाँ भी नहीं मिली बिकॉज गर्मी की छुट्टियाँ हैं 2 months की, ओके, ऑन पेपर। बट देन राइट आफ्टर द vacations are over you have the annual fashion show, and if you are taking part in the fashion show you will use those 2 months of chuttiya to prepare your collection। so it is very intensive, you have to be prepared for that, okay। if you think कि इतना काम मेरे से नहीं होगा, मत करो, choose something else, choose any other degree। जो creative degrees होती है ना, they take up your entire life, at least while you are learning। एक पल को सुकून नहीं मिलेगा, सांस लेने को टाइम नहीं मिलेगा, ओके। सो डोंट गो इनटू दैट थिंकिंग के आई डोंट वांट टू स्टडी एंड मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है तो मैं फैशन कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो द सजेशन दैट आई वांटेड टू गिव फॉर द सर्फेस डिज़ाइन इज़ फर्स्ट ईयर में यू विल लर्न, बट द थिंग
And in order to make your entire like 3 years की जो study है, to make it easier, the thing is that जो surface work है यानी जो embroidery है, immediately as soon as you start fashion school, start going around your city and like checking out the places जहाँ पर ये काम होता है, जहाँ पर embroiderers है city में. तो जस्ट स्टार्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि कौन कितने पे बनाता है, कौन कितना टाइम लेता है. एंड इफ़ यू आर एबल टू जस्ट ट्राई एंड टेस्ट दीज डिफरेंट जो कारीगर्स हैं ना, गिव देम सम वर्क, सी के वो कितना काम करते हैं, कितने सफाई से करते हैं, टाइम पर करके देते हैं क्या नहीं. एंड व्हेन यू डू दैट from the beginning of the year, by the end of the year, when you have to make your collection, you will already have your groundwork done. You will have your work cut out for you. You will know कि किसके पास जाना है, and because you will already build the relationship with that कारीगर, so you will know and he will know you. And जब जब आप प्रेशर डालोगे कि मेरा कलेक्शन है ऐसे वैसे, मुझे शो करना है, फटाफट वो आपको करके दे देगा. सो दिस विल reduce your headache. ओके. एंड द सेम थिंग विथ स्टिचिंग इज़, जो आप फैशन स्कूल में स्टिचिंग कर रहे हैं, यानी जो आपके प्रोजेक्ट्स है, जो आप पैटर्न बना के स्टिच कर रहे हैं, रेगुलर टेलर्स को दे हैव नो नॉलेज ऑफ दिस थिंग. ओके. एंड व्हेन यू टेल देम कि मुझे ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, दे विल हैव नो आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. एंड बुटीक के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ पिक अ दर्जी जो लोकल होगा, या कुछ अगर तुम्हारी फैमिली की पहचान है या जस्ट नोन लोगों में, गो टू देम एंड स्टार्ट गिविंग देम स्मॉल वर्क, लाइक छोटा छोटा सा काम देते रहो. एंड यू कैन ऑल्सो लाइक build a relation with them, so that at the end of the year, when you really need the help, because 6, 8, 10 garments अगर आपको बनाने हैं for the fashion show, you cannot do that by yourself. You cannot. And अगर आप दूसरे students के साथ इसमें भी आ रहे हैं ग्रुप में, they also cannot do it. You think that we will just divide and conquer. ये कुछ नहीं होने वाला है, because they also are students. They are also learning. And first year में nobody has any idea how to manage all of this work. Okay. तो जस्ट टेक माई एडवाइस, एक दर्जी पकड़ो, एक कारीगर पकड़ो, एंड खुद भी लर्न करो, यानी स्टिचिंग भी पहले से लर्न करो. एम्ब्रॉयडरी के लिए इतना काम नहीं है, बट यू हैव टू, बिफोर यू एंटर द कॉलेज, जस्ट मेक श्योर टू कवर दीज बेसिस सो दैट यू कैन हैव एन ईजी टाइम. वरना टेक इट फ्रॉम समवन हु हैज़ बिन थ्रू. इवन दो आई हैड दिस, ओके, मुझे पहले से सिलाई की नॉलेज थी, बल्कि प्रैक्टिस भी बहुत थी. 15 की मैं थी तब मैंने लर्निंग स्टार्ट की थी. एंड आई टुक एडमिशन व्हेन आई वाज 18. सो मुझे 3 साल का ऐसे ही ट्रेडिशनल स्टिचिंग में एक्सपीरियंस था. मैं घर के मेरे कपड़े एक्सेट्रा बनाती थी, तो उससे मेरा हाथ बहुत साफ़ हो गया था, एंड मुझे इतना नहीं वो करना पड़ता था जितना दूसरे स्टूडेंट्स को करना पड़ता था. एंड येट इट वॉज लाइक आई वॉज डाइंग एवरी डे. द वर्क इज़ टू मच एंड इट्स so much effort. So this is going to be a small video. I'm going to end it here, but these are some basic tips, basically how to make your year easier. First year, agar if you pass it na like easily without yourself, then it will get, the next year will get easier, and then it will get easier after that. So this is just my 2 cents, and I hope you have a good time. Bye.